اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننھے منھے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ چھٹیاں اچھی گزر رہی ہیں؟ ہاں، چھٹیوں میں کھیلنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی اپنی جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی صحت کا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، ٹھیک؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ چلیں آج ہم سائنس کا شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سائنس کلاس 2 چیپٹر 2 ہم پڑھیں گے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں۔ اور ہیلتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحت، اور سیفٹی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس چیپٹر کے اندر ہم دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارا باڈی جو جسم ہے وہ بھی ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے پھر دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کا کیسے خیال رکھنا ہے، کیسے اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو یہ دیکھو، یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک بڑی ساری گاڑی نظر آ رہی ہے نا؟ یہ جو بچے احمد اور بانو تھے نا، ان کے بابا ان کے لیے گاڑی لے کر آئے، اور اس گاڑی میں انہوں نے جب ان کو سیر کرائی تو احمد تو اتنا جوش میں آ گیا کہ اس نے اس میں چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ تو پھر اس کے بابا نے اسے سمجھایا کہ جب ہم گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں، کوئی مشین لے کر آئے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو اس گاڑی کے مختلف حصے نظر آ رہے ہیں نا؟ بھلا دیکھو کون کون سے حصے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے اس کے ٹائر نظر آ رہے ہیں، اس کی باڈی نظر آ رہی ہے، اس کی آگے لائٹیں بھی نظر آ رہی ہیں، شیشے بھی نظر آ رہے ہیں، دروازے بھی ہیں، اور گاڑی کے اندر بھی تو کچھ ہوگا نا؟ سیٹیں ہیں، ہارن ہے، اسٹیئرنگ ہے۔ تو گاڑی کے جیسے مختلف حصے ہوتے ہیں تو ہمیں ان حصوں کا خیال رکھنا چاہیے نا؟ جیسے ٹائر اگر خراب ہو جائے گا، گاڑی کی لائٹیں ٹوٹ جائیں گی، گاڑی کی باڈی کو کچھ ہو جائے یا شیشے خراب ہو جائیں تو گاڑی اچھی لگے گی؟ اچھی نہیں لگے گی نا؟ تو بیٹا جس طرح ہمیں گاڑی کے خیال رکھنا اور اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایک بڑی خوبصورت سی جو سے نا مشین، ہمارا جسم ہمیں دیا ہے۔ اب دیکھو اس جسم کے بھی مختلف حصے ہیں۔ اس میں ہماری آئیز ہیں، ایئرز ہیں، کان جن کو ہم کہتے ہیں، نوز بھی ہے، بال بھی تو ہے نا پیارے پیارے سے جن پہ آپ کنگھی کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی سکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت جو جسم دیا، باڈی دی ہے، تو جس طرح گاڑی کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے ویسے ہی ہمیں اپنے جسم کی بھی کیئر کرنی چاہیے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے، آور باڈی از لائک اے مشین۔ جیسے آپ گھر میں مختلف چیزوں کا خیال رکھتے ہو، گھر میں جو مشین، واشنگ مشین ہوتی ہے، جوسر ہوتا ہے، ٹی وی ہوتا ہے، ایل ای ڈی، کمپیوٹر، ان چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہو نا کہ وہ خراب نہ ہو۔ تو اسی طرح ہماری باڈی بھی ایک مشین کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح اس کی مشین کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ہر ایک حصے کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا؟ یہ تو نہیں نا کچھ کا خیال رکھنا ہے اور کچھ کو خراب کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے باڈی کے بھی سارے جسم کے حصوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنی آئیز کا بھی، اور یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو مل کر دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ جیسے گاڑی کو دھوتے ہیں نا، لوگ روزانہ گاڑی کو دھوتے ہیں، تو اس طرح ہم نے خود بھی روزانہ نہانا چاہیے، نہانے سے گندگی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی باڈی کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کلین رکھنا ہے، پیارا سا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ سب نے جو ہے نا ہیلتھی فوڈ کھانی کرنی ہے۔ ہیلتھی فوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کھانے کھانے چاہیے جن سے ہمیں پاور ملتی ہے، گندی مندی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ جیسے دودھ پینا چاہیے، انڈے کھانے چاہیے، گوشت اور قیمہ تو ڈھیر سارا کھانا چاہیے۔ یہ آپ کے جسم میں جو خون کی جب کمی ہوتی ہے نا تو چہرے پیلے ہو جاتے ہیں، تو میرا بیٹا اچھی والی چیز کھانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہیلتھی فوڈ، اور یہ بازار سے بوتلیں، برگر، سلانٹیاں، صرف یہ نہیں کھاتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھل فروٹ اور سبزیاں، ایسی چیزیں جو اچھی اچھی ہوتی ہیں نا، ہیلتھی فوڈ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، پانی تو ڈھیر سارا پینا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ پانی ڈھیر سارا نہیں پیو گے تو آپ کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر جو بچے ہیں، بڑے ہیں نا، ان کو ایک دن میں کم از کم 6 گلاس سے لے کر 8 گلاس تک پانی پینا چاہیے۔ ایک چیز تو میں بھول ہی گیا جو اوپر آپ کو بتانی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں روزانہ ورزش کرنی چاہیے، ایکسرسائز ڈیلی۔ جب ڈیلی ہم ایکسرسائز کریں گے نا، چھلانگیں لگاتے ہو، آپ کھیلتے ہو، کرکٹ کھیلتے ہو یا فٹ بال کھیلتے ہو، یہ ورزش آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
तो आपने अपनी वर्जिश का भी ख्याल रखना है, पानी भी ढेर सारा पीना है, और फ्रेश एयर आपको चाहिए होती है। अब देखो गाड़ियों के धुएं से या पोल्यूशन से जो हवा हमारी ख़राब होगी है ना, इससे हमें सांस की तकलीफ़ हो जाती है। तो हमें रोज़ाना अच्छी हवा भी चाहिए, इसलिए सुबह सुबह उठकर छत पर जाकर या बाग में जाकर सैर कर सकते हो तो सैर किया करो। तो फ्रेश एयर लेनी चाहिए, रात के वक्त भी फ्रेश एयर होती है, ठीक है। फिर अगला काम हमें ये करने की ज़रूरत है कि हमें फ्रेश एयर के साथ साथ प्रॉपर आराम की और सोने की ज़रूरत है, रेस्ट करना चाहिए। मामा आपको सुबह उठाएं तो जल्दी सुबह उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। जब आप रात को जल्दी नहीं ना सोते, देर तक जागते रहते हो, कार्टून और टीवी देखते रहते हो, तो इससे आपकी आइज़ खराब हो जाती हैं, ठीक है। और आजकल गर्मी है ना, तो गर्मियों में दोपहर को भी थोड़ी देर आपको आराम करना चाहिए। जब हम प्रॉपर देखो, जब गाड़ी मुसलसल चलती रहती है वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है, तो उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम मुसलसल काम करते रहते हैं ना तो थक जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा आराम अगर हम कर लें ना दिन में एक दफ़ा, और रात को जल्दी सोया करें, तो हमारी सेहत ठीक रहती है। डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चों को 8 घंटे रोज़ाना सोना चाहिए, लेकिन रात को जल्दी सोओ ताकि सुबह जल्दी उठो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर आपने जो चीज़ें सीखी हैं, अब आपने क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। करना आपने यूँ है कि आपने आपको जो चीज़ें खाने की अच्छी लगती हैं ना, उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर आपने अपने घर में अपने फ्रेंड के साथ, अपने बहन और भाइयों के साथ और मामा और बाबा का भी इंटरव्यू करना है, पूछना उन्हें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, 5 चीज़ें उनसे पूछो, ठीक है। फिर आप देखो कि उनमें से कौन सी खाने वाली चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्दी हैं, ठीक है, जो सेहत के लिए अच्छी हैं। जैसे दूध अच्छा था, गोश्त अच्छा था, सब्जियां और दालें अच्छी थी ना, और कौन सी ऐसी जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे बोतलें, जंक फूड हमने पढ़ा था, बर्गर, पिज़्ज़ा, सलांटियाँ, चॉकलेट, चिप्स वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो इनमें आपने उनकी लिस्ट बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, बहन भाइयों के साथ उसको कंपेयर करना है, और फिर उसमें से हेल्दी और अनहेल्दी फूड को टिक लगाना है, ठीक है। और आपने ख्याल रखना है कि हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज़ हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। हमने अपने आप को उनसे कैसे महफूज रखना है, ठीक है। हमारी सेहत को कुछ चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे देखो, कुछ जानवर होते हैं, अगर आप किसी डॉगी को छेड़ोगे, तंग करोगे, तो वो क्या करेगा, काटी करेगा ना आपको। तो जब डॉगी काटी करेगा तो फिर आपको क्या हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाकर टीके लगवाने पड़ेंगे। अगर आप बिल्ली को तंग करोगे, किसी कीड़े को तंग करोगे, तो जानवरों को तंग नहीं करते। अगर आप जानवरों को तंग करोगे तो वो क्या करेंगे, फिर वो दोबारा जो है ना हमला करते हैं, और उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से बेटा, घरों के अंदर या किसी बाग में आप जाओ, वहाँ आपको अच्छे अच्छे पौधे नज़र आते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, हो सकता है आपको पता ना हो कि ये कौन सा पौधा है उसका। अगर आप कोई फ्रूट खा लो, फल खा लो, या उसके कोई नट्स खा लो या बेरीज खा लो, तो उनमें कुछ जहरीली चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिनका आपको पता नहीं होता ना, उनके फल और फ्रूट वगैरह आपको नहीं खाने चाहिए, ठीक है। वो फल और फ्रूट खाओ जैसे मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, इस तरह के फल जिनका आपको पता है ना, सिर्फ वो खाते हैं, ठीक है। हर प्लांट का फल खाने वाला नहीं होता, उसमें से कुछ कड़वे होते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं। और हाँ, टीवी पर तो आप रोज़ाना सुनते हो और आपको पता भी चल गया भाई कि हैंड तो रोज़ाना धोने चाहिए, खास तौर पर खाना खाने से पहले। फिर वॉशरूम से जब होकर आए तो लाजमन हाथ धोया करो, और साबुन से मल मल के हाथ धोते हैं, सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने साबुन से हैंड्स को वॉश रखना होता है। खाना खाने से पहले हैंड धोवो, खाना खाने के बाद में हैंड धोवो, और वॉशरूम से जब होकर आओ तब तो लाजमन, जरासीम होते हैं ना, वो सारे मर जाते हैं, ठीक है। और खाना खाते तो जल्दी जल्दी नहीं खा लेते, आराम आराम से, ठहर ठहर के, और आराम आराम से चबा कर खाते हैं, ठीक है। अगर आप चबा कर नहीं खाओगे तो आपके मैदे में दर्द होने लग पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह से जो हम खाना खाते हैं तो उसमें अनहेल्दी फूड नहीं हमें खानी होती, ठीक है, अच्छी वाली चीज़ खानी होती है। तो ये हमने देखा खाने पीने के हवाले से हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब आगे देखते हैं ये क्या आ गया। ये तो लगता है किसी बच्चे की आइज़ हैं, 2 आइज़, और वो आपको देख रहा है
और नीचे क्या नजर आ रहा है, उसके कान भी नजर आ रहे हैं। आपको पता है ये आइज और कान आपसे क्या कह रहे हैं? ये आइज और कान आपको ये कह रहे हैं कि हमें भी केयर करने की जरूरत है। आप बड़ा सोचो तो उसी आइज की केयर क्या हो सकती है, हम आइज की केयर कैसे कर सकते हैं, और ईयर हमारे जो कान है उनकी केयर कैसे हो सकती है? शाबाश, जबरदस्त। जो आपने बातें सोची हैं बस वही बात हमारे ज़हन में भी आती है कि जब हम अपने ईयर्स की हमें केयर करने की ज़रूरत है। देखो ईयर्स किस चीज़ से खराब होते हैं? जब आप बहुत ऊंची शोर वाला म्यूज़िक सुनोगे, तेज़ आवाज़ में सुनोगे, टीवी की, कंप्यूटर की ज़्यादा आवाज़, या कोई बच्चे होते हैं ना शरारत से दूसरे के कान में तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, या कोई कान में नोक वाली चीज़ आप मारोगे तो उससे जख्म हो सकता है। तो आपने अपने कान को तेज आवाज से, म्यूजिक से, शोर से बचा के रखना है, ठीक है? और उसमें कोई चीज नहीं ऐसे डाल देनी होती, ठीक है? उससे चोट भी लग सकती है। इसी तरह से मशीनें जो होती हैं या कोई ऐसी नुकीली चीजें होती हैं, टूल्स वगैरह, उनसे भी अपने आप को बचा के रखना है। देखो मामा आपकी जो सी है ना, वो छुरी से काटती हैं या पिलर से काटती हैं। आप बच्चों का काम नहीं होता कि आप उसको इस्तेमाल करो। ऐसी कोई नोक वाली चीज जिससे आपको नुकसान हो सकता है, या ऐसी कोई मशीन जिससे आपको चोट लग सकती है मेरा बेटा, तो अपने आप को उन चीजों से महफूज रखते हैं, ठीक है? इसी तरह से बिजली वाली चीजों से भी नहीं खेलते। जैसे घर में मामा कपड़े इस्त्री करती हैं तो आप इस्त्री लगा कर करने लग पड़ो, ना 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 ना। इसी तरह से टीवी या और भी कोई बिजली में इंतहाई खतरनाक होता है। अगर किसी को बिजली का झटका लग जाए तो उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, ठीक है? तो बिजली से और इस तरह की तारों से अपने आप को बचाकर दूर रखते हैं। और अल्लाह ना करे अगर कभी बारिश में ऐसा हो जाए तो आप कोशिश किया करो कि नंगे पाँव ना हो, ताकि आपको बिजली का झटका ना लगे, ठीक है? इसी तरह से आपको क्या करने की जरूरत होती है कि गर्म जो चीजें होती हैं, जैसे मामा ने कोई गर्म सालन बनाया है तो आपने गर्म जो चीज है, या इस्त्री गर्म है या बर्तन कोई गर्म है, तो गर्म चीजों से भी अपने हाथ को बचा के रखना है। ये ना हो कोई गर्म चीज पकड़ो और आपका हाथ जल जाए, ठीक है? इसी तरह से जो तेज रोशनी होती है ना, ज्यादा तेज रोशनी, जैसे आप टीवी के पास होकर बैठ जाओ, लैपटॉप के पास होकर बैठ जाओ, या कंप्यूटर के पास होकर बैठ जाओ, या बाहर आकर सूरज धूप में आंखें उठाकर सूरज को देखने लग पड़ो, तो आईज खराब हो जाएंगी, ठीक है? अपनी आईज को बचा के रखना होता है ज्यादा तेज रोशनी से। और हल्की रोशनी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत हल्की रोशनी हो ना, अंधेरा हो, तब भी नहीं हमें पढ़ना चाहिए, उससे भी आईज खराब होती है। और घर के अंदर भी अपना ख्याल रखना है। देखो घर में फर्नीचर है, अब बच्चे आप क्या करते हो, फर्नीचर पे छलांगे लगाते हो, ठीक है? खेलना शुरू कर देते हो, खेलो, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि किसी से आपको चोट ना लग जाए, ठीक है? अपने आप को फर्नीचर से या ऐसी कोई नोक वाली जो चीज होती है उससे बचा कर रखना होता है, ठीक है? तो हम दोहरा लेते हैं। आज के दिन में हमने क्या सीखा? पहले नंबर पर हमने ये सीखा कि जिस तरह एक गाड़ी के, मशीन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, इस तरह हमारी बॉडी जो सी है वो भी एक मशीन जैसी है और उसके भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जिस तरह हमें गाड़ी को इख्तियार से रखना होता है, इसी तरह हमें भी इख्तियार से रखना है। और उसके लिए हमने कहा हेल्दी फूड है, वाटर है, एयर है, ठीक है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें हमने समझी है ना, हमें करने की ज़रूरत है। फिर हमने कहा कि कुछ चीज़ों से हमें अपने आप को महफूज रखना है जिनसे हमें चोट लग सकती है। अपनी आइज़ को भी, अपने हैंड को भी, अपने कानों को भी इन सारी चीज़ों से महफूज रखना है, ठीक है? तो मेरा बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपने और हमने ये जो चीज़ें सीखी हैं, आपने क्या करना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है, उसके अच्छी तरह से पढ़कर समझकर नोट्स की मदद से एक्सरसाइज हल करनी है और टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है? अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।